The next one would be a joint session by Mr. Raju Ranjan and Mr. Prashant Shah. Mr. Raju Ranjan has worked with various financial companies. He is practicing technical analysis and point and figure charts in particular since last 11 years. Raju regularly writes blogs and posts charts on Twitter. He is known for his disciplined trading approach and effective PNF chart analysis. He is currently working as the head of technical research. Swing trading is Mr. Raju's favorite approach. He also conducts trainings on advanced technical analysis and PNF charts. Mr. Raju's strength lies in his simplicity and friendly approach with traders. Today, he will be speaking on how to gain conviction in trading. Mr. Prashant Shah is one of the few professionals with a number of coveted and renowned designations in the industry. He has been awarded Chartered Market Technician CMT and a Certified Financial Technician CFTE. He is first in India who is the holder of the right to the Master of Financial Technical Analysis certification designation by IFTA for the original research conducted by him on line break charts swing trading techniques. He is also a member of Society of Technical Analysts, London. Mr. Prashant is a leading practitioner of one-dimensional charts in financial markets. His mission is to help others become objective, noiseless, and process-oriented trader. He regularly appears on business media channels for his views and opinions on markets. Mr. Prashant has written 3 books on the subject of trading in general and noiseless charts in particular. Mr. Prashant is the founder member and CEO of Definage. He is passionate about building innovative tools and platform for traders and investors. I would now like to hand over to them. Hello everyone. So we are coming to the last session of the day, and this is going to be presented by Raju Ranjan. वैसे he's a colleague, but I've got opportunity to moderate him today. And Raju is going to speak on trading the price patterns based on market phases. So Raju, आज हम बात करो market के phases, price patterns के बारे में. उसके पहले please brief us about your overall journey in the market and क्या experiences रहे हैं. ओके सर, थैंक यू सर. मैं ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया, उसके बाद मेरा मन था कि यहाँ के सीए करने का, बट जो फैमिली कंडीशन उस समय ठीक नहीं था. सो और सीए में क्या होता था कि टाइम लगता था, जो टाइम टेकिंग था. सो मैंने मेरे एक ब्रदर ने फिर बोला कि हाँ कि चलो ये एमबीए करो ताकि आप तुम्हारा जल्दी से ये जॉब और ये सब हो जाए. सो वहां से एमबीए किया मैंने, एमबीए इन फाइनेंस. और 2008 में मैंने एक लीडिंग ब्रोकिंग ज्वाइन किया जो कि 21 Jan 2008 मुझे याद आ रहा है. और उस दिन मार्केट में जो लोअर सर्किट लगा था. सो उस समय तक मुझे मार्केट के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम था. इवन आप बोल सकते हो कि है कि जीरो नॉलेज था ये इक्विटी मार्केट क्या होता है और ये सब से. सो वहां जब लोगों ने बोल रहा था कि है कि सर्किट लगा है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये क्या सर्किट का मतलब क्या होता है. मुझे कुछ दूसरा समझ में आया, शॉर्ट सर्किट. उसके पहले जो इंटरव्यू में भी आप मुझसे किसी ने पूछा था कि व्हाई मार्केट गोज अप और डाउन इन दैट इंटरव्यू.
सो इकोनॉमिक्स टाइम में मैं पढ़ता था कि आज एफआई ने बाई किया और एफआई सेल किया मार्केट, तो उससे मैंने कोरिलेट कर रहा था कि इसी के चलते मार्केट अप या डाउन आता है। सो मैंने वो रिप्लाई वही किया इनोसेंटली। ये बाद में मालूम चला कि नहीं, कि ये ड्यू टू डिमांड सप्लाई है और ये सब। सो वहां से जर्नी स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर पीएनएफ जो आप एक सेशन रखे, उसके बाद उस सेशन में मैंने वहां बिगिनिंग से पीएनएफ फिर स्टार्ट किया और इस तरह से कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहा। नाइस। सो आई थिंक जो तुम्हारा एक्सपोजर रहा है वो ज्यादातर पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे ही रहा है, यू बीन प्रैक्टिसिंग इट, है ना? तो दैट्स हाउ इट हैज बीन। इसके ऊपर थोड़ा सा और बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आज जो तुम्हारा सेशन है उसके ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं। तो हाउ वी डू इट इज, पहले तुम पूरा कंप्लीट कर लो योर प्रेजेंटेशन, एंड अगर मुझे कुछ क्वेरीज है तो आई विल नोट इट डाउन और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके सर, फाइन। ठीक है, ऑलराइट सर, ओवर टू यू। ओके सर। सो आज जो 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 मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि मार्केट फेज में डिफरेंट मार्केट फेज जो होते हैं उसमें आप प्राइस जो कौन से पैटर्न आप ट्रेड करेंगे उस पे मैं डिस्कस करूंगा। सो जनरली इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग, यानी ट्रेडर्स के लिए क्या जरूरी है फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रेडर, आइदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म। सो फर्स्ट इज मार्केट फेज। आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा मार्केट फेज कब है, बिकॉज एवरी टाइम मार्केट फेज अलग अलग होता है। सो आपको अकॉर्डिंग टू मार्केट फेज आपको अपना रिएक्शन करना होता है। सो नेक्स्ट जो जरूरी है वो प्राइस पैटर्न फॉर ट्रेडिंग। सो कोई भी चार्टिंग मेथड हो सकता है, या कैंडल्स या पीएनएफ या एनी चार्टिंग मेथड, बट उसका प्राइस पैटर्न इज इंपॉर्टेंट। अनदर इज रेशियो चार्ट। सो ओनली प्राइस पैटर्न, केवल मार्केट फेज और प्राइस पैटर्न अगर आप जान गए सो इतना ही केवल बहुत ज्यादा नहीं हो जाता है फॉर ट्रेडिंग। सो रेशियो चार्ट क्या इंडिकेट करता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। So ratio chart is also important for any type of trading. Now discipline with risk management. क्यों? Because जब आप प्राइस पैटर्न आप रीड कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो बेस्ड ऑन प्राइस पैटर्न और आप रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे हो, सो सब कुछ ऊपर अगर फोर्थ अगर नहीं है डिसिप्लिन विथ रिस्क मैनेजमेंट, सो एवरीथिंग आपका सही नहीं जाएगा, कुछ भी सही नहीं होगा। सो और लास्ट इज कन्विक्शन, बिकॉज मार्केट में अगर ट्रेडिंग करना है तो कन्विक्शन बहुत जरूरी है। सो इस पे अब ये पांचों जो ये सब पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बिकॉज ये पांच मुझे सर ये याद आ रहा है, एक रामायण में एक श्लोक भी था कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। सो उस तरह से ये हमको पांच बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दिखाई देता है फॉर ट्रेडिंग। सो इसलिए मैंने ये रखा। सो फर्स्ट इज मार्केट फेज। मोस्टली जो मार्केट फेज होता है वो अप डाउन और साइडवेज, ये तीन, यानी अगर आपका प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम अगर बन रहा है सो सिंपल इसको अप ट्रेंड बोलते हैं, यानी मार्केट इज इन अप फेज। अगर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है सो इसको डाउन फेज बोल सकते हैं। और मार्केट अगर एक रेंज में मूव हो रहा है सो इसको साइडवेज। और अनदर इज ब्रॉडनिंग फेज, जहां पे ये ब्रॉडनिंग फेज इज डिफिकल्ट फेज होता है। सो ये क्या होता है कि
आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ब्रेकआउट होता है, जहां पे एवरी करंट जो स्विंग रहता है प्रीवियस स्विंग से वाइडर रहता है। सो ये काफी डिफिकल्ट फेज होता है। अब ये फेज अगर आपको डिसाइड हो गया कि ये जो फेज है अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है या ब्रॉडली है, सो नाउ क्वेश्चन होता है कि किस फेज में कौन सा पैटर्न ट्रेड करना चाहिए। बिकॉज एवरी अगर मान लो कि अभी कोई पैटर्न है सिंपल ट्रिपल टॉप बाई, लेट्स एग्जांपल इन पीएनएफ चार्ट, सो ट्रिपल टॉप बाई इन एवरी फेज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इट वर्क्स वेल। सो आपको अपना पैटर्न फेज वाइज चेंज करना होता है। सो जैसे क्रिकेट में अगर आप मान लो कि दो टीम खेल रहे हैं और एक बैट्समैन है, सो अनदर टीम का जो 4-5 बॉलर होते हैं, सो एवरी बॉलर को सेम टाइप से आप नहीं खेल सकते हो। वैसे ही मार्केट फेज जो है, आपको अपना पैटर्न चेंज करना होगा, आपको ट्रेडिंग का पैटर्न चेंज करना होगा, स्टाइल चेंज करना होगा कि किसको कैसे ट्रेड करें। सो जैसे ये अप फेज है यानी अप ट्रेंड है, बिकॉज प्राइस इज गोइंग अप एंड इट्स कंटिन्यूअस जो हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। सो उसके लिए जो मैंने बहुत सारे पैटर्न है पीएनएफ में, बट मैंने कुछ पैटर्न इसमें शॉर्टलिस्ट किया है, जो बुलिश सुपर पैटर्न। अभी बुलिश सुपर पैटर्न क्यों? बिकॉज अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो बुलिश सुपर पैटर्न उनको क्या देता है, एक अफोर्डेबल रिस्क देता है। सेकेंड, ये एंकर सॉर्ट ऑफ एंकर फॉलो थ्रू है, सो मोमेंटम ट्रेड है यानी मोमेंटम का फॉलो थ्रू है। अनदर इज बुलिश T20, और जिसका ये सभी पैटर्न का काफी हम लोग वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं। सो बुलिश T20 हम पैटर्न डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या होता है। सो बुलिश T20 में भी थोड़ा रिस्क कंपैरेटिवली सुपर पैटर्न से बड़ा हो जाता है, बट आपको ये भी जो पैटर्न है सॉर्ट ऑफ मोमेंटम फॉलो थ्रू, बिकॉज किसी भी ट्रेडिंग के लिए मोमेंटम बहुत जरूरी है, और मोमेंटम आप इजीली रीड कर सकते हो ये सभी पैटर्न से। अनदर इज बुलिश ARF। उसके बाद एक पैटर्न जो मैंने ऐड किया, बुलिश 1 2 3 पुल बैक। ये क्यों? इन अप ट्रेंड प्राइस कंटिन्यूअस, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल गो अप, ठीक है। सो क्या होता है कि प्राइस पुल बैक लेता है। सो ये बुलिश 1 2 3 पुल बैक बहुत ही बढ़िया पैटर्न है फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रेड। सो कोई भी अगर पैटर्न आप ट्रेड कर रहे हो या मेथड आप यूज कर रहे हो, सो केवल ब्रेकआउट मेथड भी जरूरी नहीं है, ब्रेकआउट के साथ साथ आपका पुल बैक भी होना चाहिए। सो बुलिश 1 2 3 पुल बैक मैंने ऐड किया। सेम एक और बुलिश टर्टल फॉलो थ्रू। सो ये अगर आप अप ट्रेंड अगर आप क्लियर हो गया कि अप फेज में है, सो ये अगर 4-5 पैटर्न पे आप फोकस करते हो, सो दैट विल बी गुड, यानी ट्रेडिंग के लिए ये आपको आरआर भी अच्छा मिलेगा और रिस्क रिवार्ड यानी रिवार्ड भी आपको अच्छा होगा। सेम ठीक अपोजिट, जो अगर आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, सो ये डाउन फेज यानी डाउन ट्रेंड का है। सो उसमें ठीक अपोजिट जो कौन कौन से पैटर्न आप यूज कर सकते हो, वेरी सुपर पैटर्न। सेम, बिकॉज रिस्क आपका मिनिमम रहता है, एवरी पैटर्न का अपना एक अलग, और रिस्क बहुत जरूरी है। बेरिश T20, अनदर बेरिश ARF जो एंकर रिट्रेसमेंट फॉलो थ्रू है। सो इस सब का कंडीशन अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि जो बेरिश T20 है और एवरी बेरिश T20 और सुपर पैटर्न विल क्वालिफाई इन ARF या ARF T20 और सुपर पैटर्न, ये सब का कंडीशन अलग अलग है। सेम बेरिश 1 2 3 पुल बैक भी आप देख सकते हो, बिकॉज
combination of breakout and pullback trade, and bearish turtle follow through. सो ये सभी पैटर्न आप देख सकते हो, यानी 5 बुलिश पैटर्न और 5 बेयरिश पैटर्न। नाउ थर्ड फेज जो आता है वो साइडवेज फेज। सो साइडवेज फेज को जो पीएनएफ पे जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सॉर्ट ऑफ हम लोग उसको डील कर लेते हैं, बिकॉज क्या होता है कंस्ट्रक्शन में ही वो हम लोग उसको प्लॉट नहीं करते हैं सॉर्ट ऑफ। सो ये फेज हम लोग सॉर्ट ऑफ हैंडल कर लेते हैं थ्रू कंस्ट्रक्शन। बट जो नेक्स्ट जो फेज जो ब्रॉडनिंग फेज जो आता है ये भी एक सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव भी है, बट क्या होता है कि साइडवेज में आपको ब्रेकआउट नहीं होता है और यहाँ एवरी करंट जो स्विंग रहता है प्रीवियस स्विंग से वाइडर रहता है, इसलिए आपका स्विंग बड़ा हो जाता है। सो इस फेज को हम लोग प्लॉट करते हैं और उसके लिए अगर ये फेज आपको डिसाइड हो गया कि ये दिख रहा है ये फेज है, तो आप कौन सा पैटर्न आप ट्रेड करेंगे इस फेज के लिए, बिकॉज इस फेज में अगर आप सुपर पैटर्न ट्रेड करेंगे या T20 सो मे बी वो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा बिकॉज आपको ब्रेकआउट ट्रेड है। सो ब्रेकआउट पे अगर आप बाई करोगे तो फिर वो कॉलम रिवर्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ ब्रॉडनिंग फेज। सो उसके लिए आप उप्स पैटर्न, वीक ब्रेकआउट, जिद्दी बुल्स बियर्स, ये सभी पैटर्न आपको अच्छा रहेगा फॉर ट्रेडिंग पर्पस। सो अकॉर्डिंग टू फेज आप पैटर्न चेंज कर रहे हो, अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर रहे हैं। सो नाउ जो मैंने डिस्कस किया कि फर्स्ट जो मार्केट फेज, सेकेंड मार्केट फेज के अकॉर्डिंग आप अपना पैटर्न चेंज कर रहे हो, प्राइस पैटर्न। सो उसको मैंने डिस्कस किया। अब फर्स्ट जो था रेशियो चार्ट जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा था। सो रेशियो चार्ट क्या होता है? रेशियो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज केवल प्राइस पैटर्न से नहीं होता है। अब रेशियो चार्ट जब वन इंस्ट्रूमेंट इज डिवाइडेड यानी प्राइस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, so closing price of any instrument divided by another instrument, so this is called a sort of ratio। और उस रेशियो को अगर हम every closing पे अगर हम प्लॉट करते हैं so उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, रेशियो चार्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको निफ्टी बैंक अपॉन निफ्टी 50 है और इसके डेली क्लोजिंग को प्लॉट करते हैं, जैसे मान लो क्या कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी 30,000 पे क्लोज किया है एक एग्जांपल और निफ्टी 15,000 पे, सो 30,000 डिवाइडेड बाय 15,000 सो रेशियो आएगा 2। फिर नेक्स्ट डे अगर मान लो बैंक निफ्टी 30,500 जाता है और निफ्टी 15,500, तो सब 30,500 डिवाइडेड बाय 15,500 सो जो आएगा उसका वो रेशियो उसको हम लोग प्लॉट करते हैं। सो ये आपको दिख रहा है कि निफ्टी बैंक अपॉन निफ्टी 50 ये रेशियो चार्ट है। अब जो रेड लाइन जो दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि जो मेरा रेशियो है वो नीचे आया है, और जो ग्रीन लाइन जो दिख रहा है ब्लू लाइन, सो ब्लू लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी बैंक अपॉन निफ्टी 50 रेशियो इज गोइंग अप। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है बिकॉज न्यूमरेटर इज आउट परफॉर्मिंग। सो आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस इसका बहुत ये है। सो सिंपल अगर रेड है इसका मतलब क्या है कि निफ्टी बैंक न्यूमरेटर इज अंडर परफॉर्मिंग, सो निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब सो ट्रेड पॉइंट में एक टूल्स है जो रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स के अंदर आता है। उसमें अभी आपको ये दिख रहा है कि इसमें क्या होता है कि ग्रुप मैंने सिलेक्ट किया है निफ्टी 50 इंडेक्स और स्क्रिप्ट टू निफ्टी 50 रखा है। सो ये क्या डिसाइड करता है कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स
जो 50 स्टॉक्स है, निफ्टी 50 के अगेंस्ट, यानी रेशियो जो है अप जा रहा है या डाउन आ रहा है, यानी आउट परफॉर्मेंस है या अंडर परफॉर्मेंस है। सो अगर आउट परफॉर्मेंस है सो इसका मतलब कि रेशियो ऊपर जा रहा है। सो आप देख रहे हैं यहां पे नंबर ऑफ बार्स मैंने सिलेक्ट किया है, फ्रीक्वेंसी डेली है। सो इस तरह का मुझे दिखाई दिया कि ग्रासिम, एचसीएल टेक, आईओसी, ये सब टोटल स्कोर है। और ये जो 15 डेज का जो है, ये इसमें पैटर्न है, जो फ्लाइंग लाइन, ये सभी पैटर्न है। सो उस पे हम नहीं जाके उस पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट। सो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसको कैसे अगर हम बात करते हैं, सो टोटल स्कोर आपको दिख रहा है 11। सो आउट ऑफ 15, नंबर ऑफ बार्स मैंने 15 लिया है, इसका मतलब कि 11 डेज रेशियो जो है ऊपर गया है, ठीक है। एचसीएल टेक 11 डेज उसका रेशियो जो है अप गया है। सेम अगर हम अल्ट्रा, जैसे ये सेम है, सो अल्ट्रा टेक, टाटा कंज्यूमर, अदानी पोर्ट्स, ये सब क्या है, 3-3 स्कोर है, 3-3-4। सो इसका मतलब आउट ऑफ 15 डेज 3 डेज ही रेशियो अप गया, रेस्ट रेशियो डाउन हुआ। सो ऑन रेशियो चार्ट अल्ट्राटेक और टाटा कंज्यूमर परफॉर्मेंस नहीं है, यानी स्ट्रांग नहीं है। सो अगर मान लो कि निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है आपका बेंचमार्क, सो हम क्या करेंगे, ये अल्ट्राटेक और टाटा कंज्यूमर बाई नहीं करेंगे, हम कहा क्या बाई करेंगे, ग्रासिम, एचसीएल टेक, आईओसी, उधर फोकस करेंगे, बिकॉज रेशियो भी ऊपर जा रहा है और प्राइस में अगर ब्रेकआउट अगर आ रहा है, so it will give good RR. So this is a parameter for using trend matrix. So for EOD purpose, end of the day. अब मैं इसको थोड़ा सा एक प्रोसेस में कैसे करता हूं कि इवनिंग में NSE ऑल इंडाइसेस अपॉन निफ्टी 50 में चेक करता हूं कि कौन कौन से इंडाइसेस जो है। अब NSE ऑल सेक्टर में नहीं ये करता हूं, NSE ऑल इंडाइसेस, बिकॉज उसमें और बहुत सारे आ जाते हैं। सो निफ्टी 50 के अगेंस्ट कौन कौन से जो 15 डेज में रेशियो ऊपर कंटिन्यूअस जा रहा है, यानी आउट परफॉर्म कर रहा है, और कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो ये हमको सेक्टर मिल जाता है, इंडाइसेस मिल जाता है वहां। उसके बाद एफएनओ में अगर ट्रेड अगर हम जो करते हैं, तो उसके लिए मैंने एफएनओ ग्रुप अपॉन निफ्टी 50 से डिवाइड करते हैं, और ग्रुप में मैंने एफएनओ सिलेक्ट किया और निफ्टी 50 से, और उसमें भी नंबर ऑफ बार मैंने 15 सिलेक्ट किया। सो 15 बाय डिफॉल्ट जो है आप वही यूज करो। फ्रीक्वेंसी डेली, सो उसमें क्या होगा, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने शो किया वो आपको रिजल्ट आएगा, जो एचसीएल टेक और ग्रासिम और ये सब जो था। सेम पैरामीटर पे आप इंट्राडे नहीं कर सकते, सो उसके लिए थोड़ा आपको चेंज करना है। सो इंट्राडे अगर हम ट्रेडर हैं, सो ऑल फ्यूचर अपॉन निफ्टी, आई जो निफ्टी यानी फर्स्ट मंथ मैंने सिलेक्ट किया, और नंबर ऑफ बार 15, फ्रीक्वेंसी 15 मिनट रखा। सो एवरी 15 मिनट का जो कैंडल जो फॉर्म होता है, सो इसका मतलब क्या है कि 15 मिनट का 15 कैंडल पे रेशियो ऊपर गया है अप या डाउन। सो ये हमको रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स इंडिकेट करेगा। ये मैं यूज करता हूं फॉर इंट्राडे, और जो प्रीवियस स्लाइड का जो मैंने बताया ईओडी के लिए। इससे आपको स्टॉक सिलेक्शन का ये मेथड है। सो स्टॉक आप सेलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ओवरऑल यू आर गोइंग टू ट्रेड ऑन प्राइस चार्ट। सो अगर मान लो कि इसमें अगर मुझे आ रहा है कि अल्ट्रा ग्रासिम इस इंट्राडे में आया, मुझे मेरा हाईएस्ट स्कोर ग्रासिम 11 या 12 स्कोर। सो हम ग्रासिम के चार्ट पे देखेंगे कि क्या कोई मेरा बुलिश पैटर्न है विथ अफोर्डेबल रिस्क, अगर है
So I will go on with that. अब जो ये आएगा कि इसमें इंट्राडे में अगर आप स्कैन करते हो सो कितनी बार आप स्कैन करोगे, सो उसको मैंने एक टाइम फिक्स किया है कि ये पूरे दिन में ऑलमोस्ट फॉर इंट्राडे 5 टाइम्स उसको स्कैन करेंगे, रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स। सो फर्स्ट मेरा स्कैनिंग रहेगा इंट्राडे के लिए 9:45 के करीब, आप यानी उसके अराउंड आप 9:45 के करीब करो। फिर 10:45 में, अब 9:45 में जो मेरा स्टॉक्स आया उसमें अगर मुझे प्राइस पैटर्न मिल रहा है और मेरा फेज डिसाइड हो गया कि आज का फेज, बिकॉज अगर आप देखोगे सो हाफ एन आवर अगर आप मार्केट स्क्रीन रीड करते हो तो समझ में आ जाता है कि आज का मार्केट ट्रेंड कैसा रहने वाला है। सो उसके बाद अगर आपको समझ आ रहा है कि मेरा जो ट्रेंड अगर लेट्स एग्जांपल कि अप ट्रेंड है आज का, सो हम फोकस कौन से करेंगे, जो पैटर्न मैंने डिस्कस किया जैसे सुपर पैटर्न T20, ये सभी पैटर्न पे हम फोकस करेंगे उस दिन के लिए। उसके बाद हम 10:45 में फिर करेंगे, फिर 12 o'clock, फिर अराउंड 150 और लास्ट जो फॉर इंट्राडे हम स्कैन करेंगे 2:30। सो एवरी टाइम अगर 9:45 में मान लो कि अगर मेरा 2-3 अगर स्टॉक्स आ रहे हैं, सो अफोर्डेबल मेरा किस पे है, रिस्क है, उस पे हम ट्रेड लेंगे। अब ऐसा है नहीं कि जो मेरा 5 टाइम्स मैंने स्कैन किया और 9:45 में एक लिया, फिर 10:45 में एक लिया, 12 में एक लिया, एक स्टॉक, सो 3 मेरा स्टॉक्स हो गया लेट्स एग्जांपल। सो क्या मैं ये अगर ये नेक्स्ट जो स्कैन करेंगे अगर फिर से रिजल्ट आ रहा है और अफोर्डेबल रिस्क मिल रहा है तो क्या लेंगे। सो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर पोजीशन साइज। कि अगर मान लो मेरे रूल में ऐसा है कि एट ए टाइम आई कैन नॉट ओपन मोर देन 3 पोजीशन, सो आई नीड टू वेट कि अनलेस और अनटिल इफ प्राइस या अगर मेरा पोजीशन क्लोज नहीं होता है ये तीनों जो प्रीवियस ओपन है, सो आई विल वेट फॉर दैट क्लोजिंग, ठीक है। सो हम कुछ पोजीशन नहीं लेंगे, वहां पे हम वेट करेंगे। या अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है मान लो 1 का और 2 है मेरे पास, एक और हम ओपन कर सकते हैं मेरे रूल में, सो एक और ऐड करेंगे। सो मोस्टली अगर आप इंट्राडे का बात करें सो अराउंड 115-230 आप इंट्राडे का एक ले सकते हो वो टाइमिंग, और 9:40 10:45 ये मैंने अपने बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ये टाइम नोट किया है और जो मैं यूज करता हूं। सो पोजीशन साइजिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके रूल में होना चाहिए कि मेरा एक दिन का स्टॉप लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है। इन केस 9:45 में मैंने ट्रेड लिया फर्स्ट ट्रेड और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, सो क्या 10:45 में फिर से ट्रेड लेंगे या विल वेट फॉर द 12 o'clock, ये रूल में आपके होना चाहिए। सेम अगर दोनों स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया सो क्या उस दिन के लिए मेरा रुक जाएगा ट्रेड, या एक और मैक्सिमम अगर 3 मेरा मैक्सिमम हम ट्रेड ले रहे हैं स्टॉप लॉस है, सो हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए जा सकते हैं। सो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन रूल, बट रूल हमको ब्रीच नहीं करना है। सो नेक्स्ट जो एक चार्ट मैंने अभी आपके मुझे जो कोटक बैंक का है, मुझे याद है कोटक बैंक का जब मैंने रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स में ईओडी रन किया था और अप्रॉक्स जो डेट मुझे एग्जैक्ट याद 8 सितंबर है आई थिंक, यस 8 सितंबर उस डेट को कोटक बैंक
बुलिश इंडिकेशन में आया था और उसी समय ये बुलिश एबीसी फॉर्म हुआ था विथ अफोर्डेबल रिस्क, बिकॉज अगर आप देखें सो ऑलमोस्ट 5 बॉक्स रिस्क है। सो एबीसी ब्रेकआउट है। अनदर पैटर्न इसमें क्या था, आप अगर देखो क्लस्टर ऑफ काउंट ओपन है, सो 1984 1984 ऑलमोस्ट क्लस्टर ऑफ काउंट है। सो 3 चीज, बुलिश एबीसी, अफोर्डेबल रिस्क, रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स से मैंने कोटक बैंक सिलेक्ट किया, वो उस दिन आया था ऑलमोस्ट 8 सितंबर। और अफोर्डेबल रिस्क है और मल्टीपल वर्टिकल काउंट ओपन था और वहां से उसके बाद का आप मूव काफी बढ़िया मूव हुआ। नेक्स्ट जो आईओसी है, सेम ईओडी बेसिस पे मैंने इसको सेलेक्ट किया था बेस्ड ऑन रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स, बिकॉज मेरा मेथड है रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स के थ्रू स्टॉक सिलेक्ट करना और उसके बाद प्राइस पैटर्न। सो ये जब आईओसी आया था ऑलमोस्ट 3 सितंबर के करीब, बट उसमें क्या दिक्कत था, जब आया था वहां पे मेरा रिस्क ऑलमोस्ट इधर कहीं आया था, उस समय रिस्क मेरा अफोर्डेबल नहीं था। सो मैंने इसको छोड़ दिया और इसको वेट किया फॉर नेक्स्ट फॉलो थ्रू। अगर आया नेक्स्ट फॉलो थ्रू तो विल सी। यहां अगर देखो तो बुलिंग एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद एक बुलिश सुपर पैटर्न फॉर्म हुआ जो कि अफोर्डेबल रिस्क था। सो यहां एंटर नहीं करके मैंने ऑलमोस्ट ये 9 सितंबर या 10 सितंबर को इस प्राइस पे एंटर हुआ। सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टॉक मैंने रेशियो ट्रेंड से उस दिन सिलेक्ट तो किया बट ट्रेड नहीं किया। क्यों? बिकॉज रिस्क वाज नॉट अफोर्डेबल फॉर मी। ग्लेनमार्क सेम कंडीशन। यहां पे अगर मान लो कि मेरा रिस्क अगर मैंने डिफाइन किया कि 8 बॉक्स के ऊपर मैं नहीं लूंगा ईओडी के बेसिस पे, सो दिस अगर यहां रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स में आया भी सो अफोर्डेबल नहीं था। सो नेक्स्ट हम फॉलो थ्रू या नेक्स्ट ट्रेड नेक्स्ट पैटर्न का वेट करेंगे या अनदर कोई स्टॉक्स देखेंगे। अब अगर हम सेम इसका बात करें तो ग्लेनमार्क अगर आप देखो तो कंटिन्यूअस अंडर परफॉर्म किया था। जिस समय जो 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 लास्ट जो 2 आप देखे आईओसी और अनदर चार्ट वाज कोटक बैंक, ये सब आउट परफॉर्म कर रहा था। सो ये आपको रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स से इजीली यू कैन आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन स्कोर कि कौन सा स्कोर किधर क्या बिहेव कर रहा है। ये मैंने जो स्क्रीन जो दिखा रहे हैं इंट्राडे का है। अगर आप यहां देखो फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज द 15 मिनट फ्रीक्वेंसी आई हैव सिलेक्टेड, नंबर ऑफ बार्स 15, यानी इसका मतलब इंट्राडे। ग्रुप मैंने सिलेक्ट किया क्या है, ऑल फ्यूचर नियर और निफ्टी आई से। सो निफ्टी को कौन कौन से स्टॉक जो आउट परफॉर्मेंस है यानी रेशियो कंटिन्यूअस है। सो फाइजर ये रिसेंटली मैं बात कर रहा हूं। सो फर्स्ट जो मेरा दिखाई दिया था फाइजर और कैन बैंक, आई थिंक अप्रॉक्स ये 10:45 के करीब में आई थिंक। बट क्या था, फाइजर और कैन बैंक, फाइजर में इलिक्विड था काउंटर सॉर्ट ऑफ, और कैन बैंक का फ्यूचर में बैन था उस दिन। So I have not taken that two. But अगला अगर आप देखो तो सन फर्मा, फिर नेक्स्ट जब मैंने स्कैन किया था तो उस समय सन फर्मा आया, महिंद्रा फाइनेंस, विप्रो, चोला फाइनेंस, JSW, ये सभी स्टॉक्स आए थे। सो सन फर्मा का अगर हम चार्ट देखें, so here you can see बुलिश एबीसी ब्रेकआउट है बुलिश एबीसी का, बट रिस्क अफोर्डेबल नहीं था इंट्राडे के लिए। उसके बाद नेक्स्ट T20,
आपको दिख रहा होगा, यहां पे रिस्क अफोर्डेबल था और ये इस डबल बॉटम सेल पे मैं एग्जिट हुआ। सो एनी डबल बॉटम सेल जैसे आपको मिलेगा आप एग्जिट हो सकते हो। सो एंट्री और उसके बाद महिंद्रा महिंद्रा फिनांस सेम रिस्क इंट्राडे के लिए अफोर्डेबल नहीं था। सो ये रिस्क पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, सॉर्ट ऑफ सब्जेक्टिव है, बट आप उसको ऑब्जेक्टिव बना सकते हो कि मेरा रिस्क हम कितने बॉक्स का ले सकते हैं मैक्सिमम। सो नेक्स्ट एंट्री, बट बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट है। ऑन सेम टाइम चोला फाइनेंस जो आपने रेशियो ट्रेंड में आपने देखा, सो चोला फाइनेंस मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, अफोर्डेबल रिस्क, इट वर्क वेल। अगर हम चोला फाइनेंस का देखिए तो एंट्री 560 के करीब में था और उससे स्टॉप लॉस 554 का था और एग्जिट अराउंड 575 था। LTTS अफोर्डेबल रिस्क, ट्रिपल टॉप, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न इन PNF, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है। सेम डे अगर हम बेयरिश ट्रेड अगर कोई देखें, सो बांग्लादेश इंडस्ट्री जो था वो रेशियो अंडर परफॉर्म कर रहा था और यहाँ बेयरिश सीधा फॉर्म हुआ बिलो मूविंग एवरेज कंटिन्यूअस। सो ये 2607 स्टॉप लॉस उस समय ऑलमोस्ट 20 रुपीज का था और कंटिन्यूअस विदाउट गिविंग अ डबल टॉप बाय इट वेंट वेल। वेल ये काफी मेरे लिए ये वेल जो चार्ट था, यहाँ बुलिश T20 फॉर्म हुआ बट इसका रिस्क नहीं बैठ रहा था और ये कंटिन्यूअस ये ऊपर ये गया। सो 6210 में अगर आप देखो तो एंट्री और 6140 स्टॉप लॉस, 6350 में आपका एग्जिट इधर हुआ। सो बहुत कुछ नहीं मिला इधर, बट उस दिन ये नीचे भी नहीं आया। सो ये इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हो सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो ट्रेड आप लो वो एवरी ट्रेड आपके फेवर में नहीं है, चाहे कोई भी मेथड हो, बट आपका रेशियो इंप्रूव हो जाएगा जब आप ये रिलेटिव स्ट्रेंथ या रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स से आप जब सिलेक्ट करके और प्राइस पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो। सो इससे आपका रेशियो इंप्रूव हो जाता है। अब ये और मेनी टाइम्स जब आप चार्ट देखते हो सो आपको समझ में आता है कि ये एक जो इंट्यूशन जो आता है कि ये इट विल वर्क। सो ये ब्रूसली का जो ये एक स्टेटमेंट है, आई फेयर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक वंस बट आई फेयर द मैन who has practiced one kick 10,000 times. So continuous ऐसा नहीं कि आपको मेथड आप चेंज कर रहे हो, इसमें नहीं आ रहा है रिटर्न चलो दूसरा। सो कंटिन्यूअस एक ही मेथड आप फॉलो करो। सो बार बार जब आप आई को ट्रेन करेंगे सो क्या होता है, आई में ट्रेन होता है और आपको समझ में आता है कि हाँ जी ये स्टॉक चलने वाला है। आप प्राइस पैटर्न देख के आपको समझ में आता है कि हाँ कि कुछ गड़बड़ है, वो बाद में समझ या ये अच्छा है, बाद में समझ आता है कि ये पैटर्न कौन सा है, पहले तो आपको बिकॉज आई ट्रेंड हो जाता है। एंड इफ यू वांट टू बी अ सक्सेस इन ट्रेडिंग सो प्रैक्टिस और जब आप प्रैक्टिस करेंगे सो जो कन्विक्शन आता है थ्रू प्रैक्टिस विदाउट, बहुत सारे जो मुझे कॉल्स आते हैं और ये कि कैसे कन्विक्शन हो कि ये ट्रेड चलेगा, ये स्टॉक बाई करेगा। सो उसका कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है
only one thing is practice. So right way में practice कीजिए. एक कोई मेथड आप पकड़ लो, एक ही मेथड को कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करो, बार बार आप चेंज नहीं करो. सो आप इससे आपका कन्विक्शन, खुद का कन्विक्शन इंक्रीज होगा. डू नॉट सीक ओपिनियंस, डेवलप ओन मेथड. जैसे मान लो क्या कि किसी ने बोल दिया कि ये स्टॉक काफी अच्छा है, ये चलेगा. अब सो अपना कुछ मेथड यानी दूसरे का, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया ये सब भी मेथड. सो ऐसा नहीं, आप अपना खुद का एक कोई मेथड डेवलप करो जो कि आपको सुटेबल हो. बिकॉज सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, सबका अलग अलग ट्रेडिंग का मेथड होता है. सो टेम्परामेंट सबका अलग अलग होता है, और सेम पैटर्न, सेम मेथड सबको सूट नहीं करता है. सो आप अपना मेथड डेवलप करो. यस, ये बहुत बार ऐसा होता है कि डाइवर्ट हो जाते हैं हम लोग. नॉट लेट्स योरसेल्फ डाइवर्ट, कि कभी कुछ नहीं हो रहा है, चलो दूसरा. सो डाइवर्ट नहीं हो. एंड स्ट्रॉन्ग जो बायस होता है कि ये स्टॉक या निफ्टी यहां से ऊपर ही जाएगा, स्ट्रॉन्ग जो बायसनेस, इसको मत लाओ कभी भी. अगर ये है इसको निकलो इससे. और लास्ट, देयर इज नो हॉली ग्रेल, जो कि कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा पैटर्न अच्छा है. सो एवरी पैटर्न अच्छा है. जो मैंने डिस्कस किया कि सुपर पैटर्न, T20, ARF, 1 2 3, सभी पैटर्न अच्छे हैं. आप मार्केट फेज के हिसाब से आप ट्रेड करो, आप अपने कन्विक्शन के हिसाब से ट्रेड करो, आप खुद का अपना डेवलप करो मेथड बेस्ड ऑन योर टेम्परामेंट. अगर मान लो कि मैं एक ट्रेडर हूं जो इंट्राडे मेरे लिए सुटेबल नहीं है, सो वो इंट्राडे अगर हम ट्रेड करें तो मेरा टेम्परामेंट क्यों सूट नहीं करेगा. सो मुझे शॉर्ट टर्म डिलीवरी या लॉन्ग टर्म ट्रेड जो सूट करे वो करेंगे, इंट्राडे नहीं देखेंगे. कोई जरूरी नहीं है कि मेरा फ्रेंड अगर इंट्राडे में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, सो जाने देंगे उसको. अब चार्ट एनालिसिस, सो मैं क्या करता हूं चार्ट एनालिसिस में. सो ये सभी मेथड जो मैंने डिस्कस किया, या आज मॉर्निंग से जितने भी सेशन हुए उसमें बहुत सारे मेथड डिस्कस हुए. सो आप उसमें से कोई भी मेथड आप सिलेक्ट कर सकते हो, और रेशियो ट्रेंड को यूज करके आप स्टॉक सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हो, कोई भी मेथड. सो बट और मैं जो यूज करता हूं, जैसे मेरा 45 डिग्री ट्रेंड लाइन मोस्टली आप चार्ट पे देखते हो. सो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ये कन्विक्शन मुझे देता है फॉर ट्रेडिंग. वो कंटिन्यूअस आप देखते देखते आपको समझ में आता है कि 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, अपर डबल रिस्क मिल जाता है नेक्स्ट फॉलो थ्रू पे. सो मैं इंट्राडे के लिए जो यूज करता हूं 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, ARF और 1 2 3 पुलबैक सॉर्ट ऑफ. सो ये सभी मैं चार्ट एनालिसिस के लिए यूज करता हूं. और स्टॉक सिलेक्शन कहां से? थ्रू रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स. सो मेरा अभी तक के जर्नी में जो ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस का आप क्रक्स बोल सकते हो कि जो मुझे जो समझ में आया, सो मैंने यहाँ पे लिखा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट फेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी डे मार्केट फेज इज डिफरेंट. हमेशा चेंज होता है.
सो ये मार्केट फेज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मार्केट फेज थ्रू एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो कि आप रीड कर सकते हो इमीडिएट, या ठीक है उस पर थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। आर्गुमेंट्स आर बेसलेस एंड यूजलेस। सी कभी कभी मैं क्या देखता हूँ कि मेरा अगर मान लो स्टॉप लॉस ट्रिगर या कुछ ऐसा होता है कि ये स्टॉक नहीं चला, या ये मेरे मेथड में ये स्टॉक नहीं चला, तो उस पे आर्गुमेंट मत करो प्राइस पे। बिकॉज वो यूजलेस है। सी अगर आप अपना रूल फॉलो कर रहे हो, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, सो लेट इट बी। जब आप चार्ट एडवाइस करते हो या चार्ट स्टडी करते हो, सो अनबायस, यानी आपको अपना पोजीशन माइंड में नहीं रहना चाहिए या किसी फ्रेंड का, या बायस नहीं, अनबायस जब आप चार्ट स्टडी करते हो, सो इट गिव्स अ गुड रिजल्ट। बिकॉज स्टडी जो आपका रहेगा अनबायस रहेगा, आपको नहीं मालूम कि क्या पोजीशन है। नो अबाउट फेलियर, बिकॉज अगर कोई ट्रेड फेल हो रहा है तो उसको आपको जाके आपको स्टडी करना चाहिए, सो व्हाई इट फेल्स। और रिवर्स इंजीनियरिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर जितने भी चारों मैंने डिस्कस किया ऑलमोस्ट, सो रिवर्स इंजीनियरिंग आपको सब कुछ दे सकता है। मार्केट फेज भी आपको यहां से समझ में आ जाता है। एवरी डे आप जो स्टॉक्स ऊपर जा रहा है या नीचे आया है, सो जाके आप देखो इसका क्या प्राइस पैटर्न था, क्यों ऊपर है, कुछ तो रीजन होगा। विदाउट रीजन प्राइस नहीं ऊपर जाता है और नीचे नहीं आता है। सो वहां पे आप रीजन जाके आइडेंटिफाई करो। सो आपके ये कंटिन्यूअस हैबिट में अगर आप डालते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, और जो आप ये सभी मेथड जो आप देखते हैं ट्रेड वन में बहुत सारे, सो ये रिवर्स इंजीनियरिंग का एक आउटकम है जो हम लोग करते हैं। और ट्रेडिंग जर्नल एंड एनालाइज ट्रेड, सो आप लिखो अपने ट्रेड को, जर्नल में लिखो कि किस मेथड से मैंने ट्रेड लिया था, कब लिया था, और उसको जाके एनालाइज करो ओवर अ टाइम। सो आपको समझ आएगा कि कौन सा मेथड मेरे लिए सुटेबल है। ये सब कुछ जरूरी है। लास्ट, डू नॉट इग्नोर योर इंट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए खासकर। सो इंट्यूशन का आपको प्रैक्टिस से ये सब आता है, कन्विक्शन, इंट्यूशन, ये सब sort of subjective है last one is, but it is important for trading, what I feel. And do not forget your trading plan. So trading plan जो आपने लिखा, जो सो उसके यानी उससे बाहर नहीं जाओ, ब्रेक नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है बायस होके कि चलो एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर या नीचे करते हैं, नीचे आ रहे तो और नीचे करते हैं, नहीं। सो ये ट्रेडिंग प्लान जैसा है वैसा ही मेरा ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए। सो दैट्स ऑल। Nice presentation, Raju. अच्छा, since you are there, तो अब मेरे पास थोड़ा लिबर्टी है, विल गो बैक टू योर अर्लियर स्लाइड्स और एक बार डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये पूरे प्रेजेंटेशन में यू टॉक्ड अबाउट थ्री थिंग्स। पहला एक पैटर्न्स सिलेक्शन बेस्ड ऑन द मार्केट प्लेस, रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स फॉर स्टॉक सिलेक्शन, and you talked about how to manage trade and psychological aspects, or you should practice and all, right?
तो पहला जो चीज है ना उसपे हम जानते हैं कि पैटर्न्स बेस्ड ऑन मार्केट प्लेस। गो बैक टू दैट स्लाइड। तो पहले तो जिन लोगों को अभी ये सारे पैटर्न्स पता नहीं है तो दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसके बारे में काफी वीडियोस भी है इनसाइड में, इज एक्सप्लेन्ड इन माय बुक एज वेल एंड पीपल कीप टॉकिंग अबाउट। उसमें से काफी पैटर्न्स आज के पूरे दिन में काफी लोगों ने कवर भी किए। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे राजू व्हाट इज सेइंग इज ये अपट्रेंड में यू शुड लुक एट मोमेंटम ब्रेकआउट। मतलब अगर हम सुपर पैटर्न की बात करें T20 AR तो ये सारे बेसिकली मोमेंटम ब्रेकआउट पैटर्न है जी। और 1 2 3 8 पुल बैक यू यूज। तो बेसिकली व्हाट इज सेइंग इज कि ब्रेकआउट एंड पुल बैक को अपट्रेंड में करना चाहिए यू शुड ट्रेड। करेक्ट। एंड इसमें कुछ और भी पैटर्न्स हो सकते हैं। आई थिंक बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस यू सिलेक्टेड सर्टेन पैटर्न्स, राइट? तो जी। सही के अब पहले तो ये अपट्रेंड है तो ये किसी भी टाइम फ्रेम पे है। मान लो डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता है, लोअर टाइम फ्रेम पे हो सकता है। करेक्ट। सो कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है ये। व्हाट यू डू अगर अपट्रेंड डेली टाइम फ्रेम में है और लोअर टाइम फ्रेम पे कोई और फेज दिख रहा है, फिर कैसे ट्रीट करोगे? ओके, सो डिपेंड अपॉन हम किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर मान लो कि अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं और मुझे जो इंट्राडे में जैसे अगर हम 0.25% ईओडी चार्ट पे अगर देखें तो हो सकता है कि वो सॉर्ट ऑफ डाउन ट्रेंड में हो, बट इंट्राडे के लिए वो पॉसिबल है कि उस दिन के लिए वो अप ट्रेंड हो। सो मेरे लिए इंट्राडे का ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज सेइंग इज अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो इंट्राडे का ट्रेंड देखो, फिर डेली इग्नोर करो। यस। ठीक है, ब्रॉडनिंग वाला। इसके बाद देन ओके साइडवेज, गो बैक टू साइडवेज। अब साइडवेज में व्हाट इज सेइंग इज ये पॉइंटेड फिगर इस पैटर्न को इग्नोर कर देता है, फाइन। बट मान लो साइडवेज सेशन है वो पूरे दिन, हाँ ये टाइम में ज्यादा प्लॉटिंग नहीं हो रहा है, देन व्हाट यू डू उस टाइम पे पहली बात तो आप ही नो इन द मॉर्निंग की ये साइडवेज होने वाला है। एंड सेकंड क्या करोगे उस दिन? कुछ नहीं करो सर ये जो साइडवेज जो फेज है, सो एक तो अभी जो फेज अगर आप हम देखें बात करें सो इसको पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव थोड़ा बनाना बहुत मुश्किल है। अभी तक हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि इसको कैसे ऑब्जेक्टिव बनाना है, बट जो थ्रू ये स्क्रीन रीडिंग समझ में आ जाता है इनिशियल फेज में ही कि ये मार्केट कुछ नहीं करने वाला है। अब ये साइडवेज फेज अगर हम इंट्राडे का बात करें कि ये साइडवेज फेज कैसे थोड़ा समझ में आता है, सो आप देखो सो जो मोमेंटम जो है स्टॉक्स में वो नहीं आपको दिखेगा उस दिन के लिए। सो ऑटोमेटिक वहां वो समझ आपको जो यानी अगर उस दिन अगर आपको समझ में आया कि ये साइडवेज फेज है, सो उस दिन आप कोई भी पैटर्न अगर ट्रेड करोगे तो शॉर्ट ऑफ आपको जाएगा स्टॉप लॉस, सो उसको आप इग्नोर करो उस दिन के लिए। ओके, नेक्स्ट ब्रॉडनिंग पैटर्न। अब देखो ब्रॉडनिंग में आई अंडरस्टूड व्हाट यू सेड इज के थोड़ा सा जजमेंट लेना होगा और गेट टू नो यू फील आता है स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, सो मे बी यू कैन कंसीडर इट एट साइडवेज, सेम वे अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। अब ब्रॉडनिंग में आप पहले 3 पॉइंट देखोगे व्हेन द हाई इज क्रॉसिंग द प्रीवियस हाई, जब वो ब्रॉडनिंग पैटर्न नहीं है उस टाइम पे अप ट्रेंड है। करेक्ट। तो ये ब्रॉडनिंग तो होने के बाद जो रियलाइज कि अब तो ब्रॉडनिंग हो गया। सो ये जो फर्स्ट जो आता है ये फर्स्ट वाला यहां तक तो आपको समझ में आता है कि ये अप ट्रेंड में है। सो आप जो एक्शन जो यहां जो लेते हैं वो अप ट्रेंड का ही एक्शन लेते हैं।
इस फर्स्ट वाले में। लेकिन नेक्स्ट जब ये स्टॉप लॉस जब आपका ट्रिगर होता है, और जो मैंने जो बोला कि ये ईओडी बेसिस पे अगर आपको कि कौन सा पेज चल रहा है वहां देखना है, सो रिवर्स इंजीनियरिंग जब हम करते हैं तो समझ में आता है कि आज जो है ब्रेकआउट पैटर्न जो है ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं। सो ये सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट था ट्रेड। अगर हम देखें सो प्रीवियस स्विंग के ऊपर गया प्राइस और ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो फेल हो गया। सो वैसे आपको रिवर्स इंजीनियरिंग से इमीडिएट आपको समझ में आता है कि इधर जो है फेल हो रहा है, इसका मतलब ये फेज चेंज हो रहा है, और ट्रेंड जो है हो सकता है कि ये चेंज हो रहा है। अदरवाइज अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता तो ये ब्रेकआउट वर्क करता। ओके, सो बेसिकली यू आर सेइंग के जो मेथड आप फॉलो कर रहे हो, जब वो वर्क नहीं हो रहा है, वो फेज में आपका ट्रेड फेल हो रहा है, तो देन वो काइंड ऑफ आपको एक टाइप का नोटिस है कि ये बॉस जो फेज है वो चेंज हो सकता है, या मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। करेक्ट। ठीक है। अब द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज, कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा है कि ट्रेडिंग पैटर्न बेस्ड ऑन द मार्केट फेज, आपने डिवाइड भी किए हैं पैटर्न्स, बट देन हाउ डू यू नो अबाउट द मार्केट फेज? मेजॉरिटी ऐसा होता है कि वो तो पता होने के बाद पता चलता है, ये तो अप ट्रेंड था, ये तो डाउन ट्रेंड था, तो इसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्टिव रूल है जो दिमाग में है? आज थोड़ा ये अभी तक कुछ ऑब्जेक्टिव बहुत ये नहीं बना पाया गया है इसको, फेज को। बट दो चीज जो 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 मुझे समझ आया कि जब रिवर्स इंजीनियरिंग जब किया जाता है, सो वहां पे फेज अपने को समझ में आ जाता है कि कौन सा फेज ये चल रहा है और क्या वर्क कर रहा है। सो अगर इन केस जैसे एग्जांपल जैसे मैंने लिया है कि आप ट्रेंड में सुपर पैटर्न, सो कंटिन्यू अगर सुपर पैटर्न या एंकर फॉलो थ्रू अगर आपका फेल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक दिन अगर फेल हुआ इसका मतलब क्या है कि पॉसिबल कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। सो आप अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट फेज आप पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। सो अभी तक सर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, फाइन। व्हाट वुड बी द आइडिया? हाउ डू यू अगर मान लो इसके पहले चार्ट देखोगे, फॉर एग्जांपल यू सेड के यू सी लॉट ऑफ चार्ट्स और वहां पे पैटर्न्स देखते हो, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्या वहां से आइडिया आ सकता है? नंबर वन। मैं सेकंड ऑप्शन अगर दूं कि क्या ये हो सकता है कि स्टॉक लेट्स से ट्रेडिंग अबव स्टॉक को अप ट्रेंड कंसीडर करे, और डाउन ट्रेंड अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है बिलो मूविंग एवरेज तो उसको डाउन ट्रेंड कंसीडर करे। सेकंड। थर्ड, डू यू सी ब्रेथ नंबर, उसका एग्जॉशन, उससे कुछ आइडिया आता है? नंबर फोर, क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ देखोगे, क्या उससे आइडिया आता है? दीस आर द वेरियस पॉइंट्स दैट आई एम डूइंग। इसमें से कोई कुछ लगता है कि ये चीज जो है मैं रीड करता हूँ और ये थोड़ा यूजफुल हो सकता है? सर ये अगर मार्केट एनालिसिस अगर ईओडी बेसिस पे करते हैं, सो ये सबका एनालिसिस तो करना ही है। और ये अगर सिंपल अगर एकदम अगर बात करें, सो अबव मूविंग एवरेज बिलो मूविंग एवरेज ये ट्रेंड फिल्टर हो जाता है, यानी उससे आपको समझ में हो जाता है। बट ब्रेक भी बहुत जरूरी है, जो आप डिस्कस अभी किए ब्रेक, सो उसका भी एनालिसिस जरूरी है कि एग्जॉशन में अभी कि कैसा है। सो ये जब हम एनालिसिस ईओडी बेसिस पे करेंगे तो ये सबका हम एनालिसिस करते हैं। सो उसमें ब्रेक आ जाता है, इंडाइसिस का आ जाता है, प्लस अगर जब चार्ट अगर आप देखते हैं कंटिन्यूअस, जो मैंने एक स्लाइड में डिस्कस भी किया था कि आई को आपको ट्रेन करना होता है। सो आई अगर आपका ट्रेंड हुआ, सो चार्ट देखते ही समझ में आता है कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या किस तरह का मूव है। सो
मेरा ये है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे सो उससे ही अभी होगा। अभी कोई सर ऑब्जेक्टिव, इसको फीज को थोड़ा मुश्किल है डिफाइन करना कि आखिर इवन इंट्राडे के लिए अगर जैसे मैंने बोला कि स्क्रीन रीडिंग, सो स्क्रीन रीड भी करके आप इमीडिएट उस दिन के लिए समझ में आ जाता है कि आज का फेज कैसा होने वाला है। Alright. So, coming to your ratio trend matrix. तो पहले तो ये जो कुछ पैटर्न्स है, फ्लाइंग, बुलिश स्टार, लाइन, ये सब हम लोग सेपरेटली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट द पीपल हु डोंट नो, अगर ये हर एक बार पे वो पैटर्न कैलकुलेट कर रहा है फॉर ईच स्टॉक जो आप ग्रुप में देख रहे हो, और यहाँ पे जो पैरामीटर इस पर्टिकुलर विंडो में सिलेक्ट हुआ है, एक है नंबर ऑफ बार्स जो 15 दिख रहे हैं आपको, मतलब लास्ट 15 बार पे जो फ्रीक्वेंसी है वो डेली है, मतलब डेली चार्ट के लास्ट 15 बार पे वो पैटर्न आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन सा फॉर्मेशन है। बेसिकली जो ग्रीन बॉक्स है वो बुलिश रेशियो पैटर्न है और रेड बॉक्स है वो बेरिश रेशियो पैटर्न है, और अकॉर्डिंगली स्कोर किया है, और एक टोटल स्कोर का कॉलम है जहां पे अगर स्कोर पॉजिटिव है, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना वो स्टॉक जो है उसका ट्रेंड है वो आउट परफॉर्मेंस का है। फॉर एग्जांपल इस केस में ग्रासिम का स्कोर 11 है, तो लास्ट 15 सेशन में से 11 सेशन में इट हैज आउट परफॉर्म, तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग रीड करते हैं इससे, एंड देन वी ट्राई टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन दो स्टॉक्स और ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे व्हेन यू टॉक्ड अबाउट दिस, तो ग्रासिम एचसीएल टेक ऐसा एग्जांपल दिया, तो क्या यू विल लुक फॉर ओनली टॉप स्टॉक्स एंड बॉटम स्टॉक्स, टॉप स्टॉक्स फॉर लॉन्ग एंड बॉटम स्टॉक्स फॉर शॉर्ट? ये ऐसा नहीं है, बीच में भी कोई और रीड करते हो, पॉजिटिव है तो भी देखते हो? व्हाट डू यू सी व्हेन यू रन दिस थिंग? सर ये इसमें जो तीन हम पकड़ते हैं, जैसे शुरू जो जो टॉप जो है दो यानी 3 4 जो ऊपर में जो दिख रहे हैं आपको 11 10 ऐसा, सो 10 तक हम देखते हैं। नीचे जो बीच का भी पकड़ते हैं, जो बीच का क्या होता है कि ट्रेंड वहां से स्टार्ट होता है और नीचे फिर लास्ट वाला देखते हैं। सो ये 3 फेज में मैं डिवाइड किया है। तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज अबाउट 10, तुम 15 में से जो अबाउट 10 है दैट यू आर लुकिंग एट, कैन यू डिफाइन इट लाइक दैट? और तो ये है डेली टाइम फ्रेम पे, और तुम अगेंस्ट निफ्टी तुमने आई थिंक यू सेड नेक्स्ट स्लाइड में कि ऑल इंडाइसेस यू विल सी ये बॉटम के हो गए, राइट, एंड देन ऑल इंडाइसेस and F&O group divided by Nifty for derivative stock analysis. कर तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे जी, एंड देन रियल टाइम पे यू सेड 15 मिनट। करेक्ट। सो वहां पे डेली टाइम फ्रेम और यहाँ पे 15 मिनट, तो 15 मिनट पे लास्ट 15 बार, करेक्ट, 15 बार जो है, और लास्ट 15 मिनट, सो रफली आई मीन लास्ट 2 or 3 सेशंस में भी वी कैन एनालाइज कि उसका ट्रेंड क्या रहा है ओवरऑल, राइट। तो एवरी फ्यूचर कंपेयर्ड टू निफ्टी, एग्जैक्टली। और ये आप दिन में 5 बार रन करते हो? हाँ, बीच में 5 बार मैं रन करता हूँ। सो टाइम मैंने डिसाइड करके रखा है कि so up for example 9:45 you got some bullish stock, so you will take an entry, यस। तो अब इसमें देन यू सेड कि रूल होने चाहिए कि नंबर ऑफ स्टॉक कितना करोगे, स्टॉप लॉस कितना होगा, एट अ टाइम कितना करोगे, राइट, ऑल दैट शुड बी इन योर केस प्लान। सो ये रूल होना, जैसे मैंने रूल जो रखा है, सो ये सबका रूल होना चाहिए कि मेरा इनिशियल में कितना हम ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं कि 9:45 में अगर मेरे पास 5 स्टॉक्स आ गए या सो 5 हम बाई कर लेंगे, नहीं। ठीक है, रूल होना चाहिए, तो व्हाट यू रेकमेंड, क्या रूल होना चाहिए, एट अ टाइम कितना पोजीशन? सो एट ए टाइम अगर 9:45 में अगर आया सो स्टार्टिंग है, सो एक पोजीशन से आप स्टार्ट करते हैं, जो मैं जो करता हूँ। सो फर्स्ट देखते हैं कि आगे 9:45 एक ट्रेड लिया, क्या फेवर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट हम एक से ही करते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते हैं। तो इन दैट केस व्हाट कैन हैपन इज, अगर स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है, इफ यू आइडेंटिफाई, मान लो आपका आया और स्कैनर में भी बुलिश स्टॉक है,
स्ट्रॉन्ग बुलिश डे के दिन एक ही ट्रेड लिया एंड देन वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेड, तो उस टाइम पे तो अंडर परफॉर्म हो जाएगा, आप ज्यादा ट्रेड ही नहीं करोगे इवन तो दिन अच्छा है। नहीं सर, 945 जो है इनिशियल स्टेज रहता है मार्केट का। सो 945 में अगर हम एक ट्रेड लिए और आपको फेवर में समझ में आया कि आगे ये पूरे दिन, बिकॉज 945 के बाद आप 1045 में फिर से आप जा रहे हो स्कैन करने। सो ऐसा 1 आवर में ऐसा नहीं होता है, यानी जो जो हमने एक्सपीरियंस है कि पूरे दिन का मूव हो जाता है। बिकॉज उसके बाद मेरा अगर समझ में आया कि आगे ये मेरे फेवर में जा रहा है और कंटिन्यूअस जैसा मैंने फेज रीड किया 945 तक और सेम फेज हो रहा है, सो 1045 में आई इंक्रीज पोजीशन। उसके उसके बाद मेरा अगर आप देखें पूरे दिन का, सो जो 150 जो है वो इंपॉर्टेंट टाइम रहता है, यानी 1 बजे के करीब में। सो वहां पे इंट्राडे का और मोमेंटम आपको आता है। सो अगर मान लीजिए आप ट्रेंड में मोमेंटम में है पूरे दिन, सो वो ये स्टॉक्स कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म करते रहेगा। सो अगर मान लो 945 में मेरा मिस हुआ कोई स्टॉक्स, सो 1045 में उसकी फॉलो थ्रू पे फिर से हम ट्रेड लेंगे। अंडरस्टूड। तो अब ये है पर्टिकुलरली प्योरली फॉर इंट्राडे, अगर ये हम टाइम फ्रेम की बात करें, यस। डू यू हैव समथिंग इन माइंड? मान लो पोजिशनल ट्रेडिंग में डू यू सी, एक तो है पॉसिबिलिटी डेली रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स, हाँ देन अगर पोजिशनल ट्रेडिंग और लोअर टाइम फ्रेम पे करना हो, मतलब बिल्कुल इंट्राडे नहीं करना है, मोमेंटम ट्रेडिंग करना है, रखेंगे उसको। ओके। सो यानी मोमेंटम अगर ट्रेडिंग करना है तो बेस्ड ऑन प्राइस पैटर्न। ओके, या ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन प्राइस। हाँ, सो बेस्ड ऑन प्राइस पैटर्न आप लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी आप एआरएफ बुलिश या बेयरिश जो पैटर्न है वो ट्रेड कर सकते हैं, जो एंकर फॉलो थ्रू। और उसको कंबाइन आप एक और पैटर्न से क्या कर सकते हैं, 1 2 3 पुल बैक। बिकॉज अगर आप ये दोनों कंबाइन कर देंगे, सो शॉर्ट ऑफ आपका हो जाता है मोमेंटम ट्रेडिंग और पुल बैक दोनों के लिए। और प्राइस पैटर्न से ना करना हो तो? प्राइस पैटर्न पे अगर आपको नहीं करना है, सी अगर सी स्टॉक सिलेक्शन का बहुत सारा मेथड हो सकता है। सो स्टॉक तो आप कहीं से भी सिलेक्ट करके आओ, ट्रेड तो प्राइस पैटर्न पे ही आप करने वाले हो जब तक। ओके, अच्छा नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। सो यहाँ पे ऑफ कोर्स एबीसी T20 ये टाइप के पैटर्न हो सकते हैं, तो कैन वी सिंपली से कि अगर मुझे कम स्टॉप लॉस से ट्रेड मिलता है, इवन इफ आई डोंट नो कि ये बहुत सारे पैटर्न्स का शायद नॉलेज ना हो सबको, करेक्ट? तो कैन वी सिंपली से कि अगर सिंपल लोअर कम स्टॉप लॉस से मुझे ट्रेड मिले तो आई कैन इनिशिएट, ऑफ कोर्स रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स देखिए। बिल्कुल, अगर अगर अफोर्डेबल रिस्क के साथ है और कोई प्राइस पैटर्न वैसा जैसे बुलिश एबीसी यहाँ मिला है, वैसा अगर नहीं भी अगर मिलता है, रिस्क अफोर्डेबल है और रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स में अगर आपका है। अब जनरली क्या होता है, अगर हम देखें एआरएफ बुलिश और बेरिश या एक और जो न्यू पैटर्न जो जो ट्रेडमेंट में है, अफोर्डेबल रिस्क जो बाई और सेल, सो वो पैटर्न कहीं ना कहीं इधर आपका हो जाता है, जैसे ये एआरएफ बुलिश और बेरिश में ये क्वालिफाई हो जाता है। करेक्ट, सो ये कर सकते हैं आप। या जो तो जो जरूरी है क्या है कि मेरा रिस्क अफोर्डेबल हो। अच्छा लास्टली ऑफ कोर्स अब ये जो तुमने बताया, तो द बॉटम लाइन इज कि आप मार्केट का पेज अगर चेंज होता देखो तो अकॉर्डिंगली यू चेंज योर सिलेक्शन ऑफ पैटर्न, है ना? जी अब इसमें पैटर्न और भी लोगों के अपने अपने और हो सकते हैं, कोई किसी के साथ कंफर्टेबल है, कोई नहीं है, बट बॉटम लाइन में यू कीप रिस्क अंडर कंट्रोल एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। आपको कभी कभी ट्रीटमेंट थोड़ा अलग करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द मार्केट फेज। करेक्ट।
पहले थे ना, एंड देन उसके बेसिस पे पैटर्न कौन सा क्रिएट करना है दैट यू डिसाइड. उसके बाद यू रन रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स टू आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स, और फिर उसमें वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे अफोर्डेबल रिस्क रिवॉर्ड. करेक्ट. Great. So I think most of the things are covered. और अगर simply mid cap, small cap में भी अगर ये चीज रन करना हो तो same thing is applicable on daily time frame as well. So Nifty 500. Okay. और इसलिए मैंने जो बोला कि निफ्टी इंडाइसेस जो एनएसई ऑल इंडाइसेस अपॉन निफ्टी 50 जब करेंगे, सो वहां समझ में आ जाता है कि कौन सा इंडाइसेस आउट परफॉर्म कर रहा है. सो उसका फिर आप जाके रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स आप रन करके उसका स्टॉक फिर देख सकते हैं. तो मान लो कोई सेक्टर समझ में आया, जैसे फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था, व्हाट डू आई डू? हम लोग फार्मा को डिनोमिनेटर सिलेक्ट करके करें. करेक्ट. ठीक है. I guess we've covered all the important points, and I hope people will find it useful. जहाँ तक प्रैक्टिस का है, I remember a very अच्छा एक saying है कि practice, you should not practice until you get it right. You should practice until you can't get it wrong. So excellent session, Raju. Thanks for this. Thank you so much, sir. Thank you.